In this video lecture, we will discuss about class 11, chapter number 6, work, energy and power. And our today's topic name is law of conservation of mechanical energy for spring. Ready? So before starting this lecture, we will discuss about last lecture. So in the last lecture we had discussed about the elastic potential energy for the spring. Ready? So before starting that elastic potential energy for spring, we had discussed about some basics of spring. Ready? So in the basic of spring, we had seen the definition of restoring force produced in the spring. Ready? The definition was the force, or you can say when we apply external force. When we apply external force on the spring, then one force will be produced in the spring. One force will be produced inside the spring that will oppose the external force. And that will be in the opposite direction of displacement. Ready? That will be in the opposite direction of displacement, and the force is called restoring force. And we are calling that force restoring force because this force will try to return back. This force will try to bring back the spring in its original position. So that we are calling that force as restoring force. And we know that the restoring force is directly proportional to the displacement. The restoring force is directly proportional to the displacement of spring, or you can say the change in length of spring, and it is in opposite direction. So we have seen the equation like the spring force is directly proportional to x, or you can say minus x, and f of s is equal to minus kx. And this equation is very most important equation for the spring force for spring. Ready? And if the k is high, ready? If the k is high, that means the spring is stiff, and if the k is low, that means our spring is soft, right? So from k, or you can say from the spring constant k, you can decide your spring is either stiff or soft, right? You can decide the stiffness or softness of your spring. Okay, then we had derived the equation of elastic potential energy in two ways from using our Ganpati Bappa's equation, right? Means the equation of integration, and also by using the graphical method. We had derived the equation for work done by spring force, or you can say the elastic potential energy of spring, that was minus 1 by 2 kx square, right? It is most important equation, and this equation we will use thousands times in this theory also. Okay, now come to the point. We will draw the same figure as we had drawn in the last lecture. Okay, so in last lecture we had drawn one rigid wall. Ready? We had drawn one rigid wall. Okay, and it is the normal position of our block or spring. Normal position means here the spring is at x is equal to 0, right? And in this time there is no spring force, or spring force is also 0, means we are not applying any type of external force in this position, x is equal to 0. Now if you stretch the spring, what will happen. Now if you stretch the spring, right, you have to apply external force. You have to apply external force to the right side. Okay, and here is the displacement that will be positive because it is to the right side, or you can say in the direction of positive x-axis. Okay, and
as per the definition of restoring force. Restoring force will be opposite to the our applied force, or you can say it will be opposite to the change in length or the displacement of spring. So you know restoring force will be produced in the spring in opposite direction, that is minus Fs. Okay. Now same, if you compress the spring, okay, if you compress the spring, then what will happen? You know, there will be again same displacement in the negative direction. Okay. Now if you want to compress the spring, you have to apply external force to the left side. Okay. So you know, as per the definition of restoring force will be produced in the right side in the spring. Okay. चलो भाई, ये जो फिगर आप लोग देख रहे हो, इसका यूज हम फिर से क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करना है। तो आप लोग सबसे पहले 2-3 लेक्चर पहले की बात को याद कीजिए। 2-3 लेक्चर पहले सेम चीज, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए भी प्रूव किया था। आप लोग याद कीजिए, वहां पे हम लोगों ने एक मस्त स्मार्ट चार्ट भी ड्रॉ किया था, याद हो तो, राइट, कि भाई हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी कितनी रहेगी, बीच में कितनी रहेगी, नीचे की ओर जब अपना सब्सटेंस पहुंचेगा, अपनी बॉडी पहुंचेगी, तो वहां पे उसकी पोटेंशियल काइनेटिक मैकेनिकल कितनी रहेगी, वो सब हम लोगों ने स्मार्ट चार्ट में ड्रॉ किया था। तो सेम चीज हम लोग ड्रॉ करेंगे लेकिन स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो सेम चीज हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ फ्री बॉडी के लिए प्रूव किया था, तो वही आप लोग स्प्रिंग के लिए भी प्रूव करोगे कि भाई स्प्रिंग के लिए भी ये लॉ अप्लाई होगा, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको ओबे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर आप लोगों को मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन प्रूव करना होगा, तो सबसे पहले जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है भाई? स्प्रिंग फोर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रूव करना होगा कि वाई वी आर अप्लाइंग स्प्रिंग फोर्स और वाई वी आर डिस्कसिंग स्प्रिंग फोर्स एंड द स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, राइट। यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं वो हमारा स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर आपका स्प्रिंग फोर्स सबसे पहले कंजर्वेटिव रहेगा तो आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे आप लोगों को ये थियरी कैसे याद रखनी है, राइट। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में क्या बात करेंगे भाई, यहाँ पे कि अपना जो स्प्रिंग फोर्स है, राइट, जो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, अभी हमने रिवीजन भी किया। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स रहेगा वो सबसे पहले आपको प्रूव करना होगा कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब याद कीजिए, हम लोगों ने 2-3 लेक्चर पहले कंजर्वेटिव फोर्स की मैंने आपको 3 डेफिनेशन करवाई थी, उसमें से डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 3 वो हम यहाँ पे 2 बार प्रूव करेंगे, मतलब कि 2 अलग अलग तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे कि अपना जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, उसका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लॉ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे if we pull the spring from initial position x of I to final position x of f, ठीक है। इनिशियल पोजीशन मतलब भाई कि यहां से लेके मैक्सिमम तक, राइट, यहां से लेके आप लोग मैक्सिमम तक कहीं भी आप लोग स्प्रिंग को क्या कर सकते हो भाई, पुल कर सकते हो, बीच में कहीं से भी, राइट। एक्स साइड टू फाइनल पोजीशन एक्स एफ, द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। चलो यहाँ पे फिर से हम लोगों को वही गणपति बापा वाला इक्वेशन अप्लाई करके, राइट, इस थ्योरी का मुहूर्त निकालना होगा, राइट, मुहूर्त स्टार्ट करना होगा। और वहीं से क्या होगा भाई, आपका प्रूफ निकलेगा कि भाई हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। अगर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो ही आप लोग नेक्स्ट बोल सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी का भी कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को सेम प्रूफ करना होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज कितना होगा भाई, यहाँ पे सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएगी। वहां पे हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, मतलब कि कोई भी इनिशियल पोजीशन से आप लोग स्प्रिंग को पुल करोगे और मैक्सिमम पोजीशन या तो फाइनल पोजीशन तक उसको आप लोग पुल करोगे।
इक्वेशन आप लोगों को याद ही होगा, गणपति पापा वाला, एफ ऑफ एफ इंटू डी एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एस मतलब क्या होगा भाई, स्प्रिंग फोर्स। सो फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, एफ ऑफ एफ अभी हम लोगों ने रिवीजन किया भाई, उसका इक्वेशन क्या होगा, माइनस के इंटू एक्स, रेडी, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्योंकि माइनस के को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, आप लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा एक्स आई से एक्स एफ तक डीएक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का, रेडी। चलो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, एक्स के ऊपर कुछ नहीं होगा तो कितना होगा, 1। उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगा और वही पावर कहाँ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर। So you will get x square by 2 and lower limit is xi and upper limit is xf. Ready? Now you will apply upper limit minus lower limit. Ready? So you have to put one time xf in the place of x. So you will get xf square by 2 minus xi square by 2. You can see, right? चलो भाई अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आपको मिलेगा माइनस, यू कैन सी माइनस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 के एक्स आई स्क्वायर। ओके, चलो भाई इसी इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करेंगे, राइट, ठीक से उसको अरेंज कर देंगे। 1/2 यू कैन सी 1/2 के एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर, रेडी। और आप लोगों को पता ही होगा हमारी गोल्डन लाइन कि जो यहाँ पे हम लोगों ने वर्तन किया है वही वर्तन इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। सेम आप लोग लिख सकते हो भाई यहाँ पे वी ऑफ एस, ठीक है। तो चलो भाई आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये चीज हम लोगों ने क्यों प्रूव की, तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों का ध्यान हो तो आप लोग चेक कीजिए यहाँ पे क्या गया, देखो के तो क्या होगा, के तो कांस्टेंट होगा, तो मतलब कि आपका जो वर्क डन होगा या तो उसके अंदर मतलब इस स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल और उसकी फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। अब याद कीजिए आप लोग, हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या सीखी थी कि अगर कोई भी फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है तो आपका फोर्स क्या होगा भाई, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये देखो हम लोगों ने प्रूव कर दिया तो भाई हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, हियर the work done, here the work done by spring force is dependent on only initial means x of I and final पोजीशन एक्स ऑफ एल। समझ गए भाई कि अगर कोई भी वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसका मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने फोर्स, राइट, जो इक्वेशन में लिया हुआ है वो फोर्स क्या होगा भाई, अपना कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब सेम चीज हम लोग दूसरी बार प्रूव करेंगे, राइट, कंजर्वेटिव फोर्स की तीसरी डेफिनेशन की मदद से। ये डेफिनेशन हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स की दूसरी डेफिनेशन में सीखी थी, याद हो तो, राइट। और सेम चीज हम थर्ड डेफिनेशन से भी प्रूव करेंगे और बाद में हम लोग बोल देंगे भाई कि हम लोगों ने तो दो प्रूफ आप लोगों को दे दिए कि भाई ये फोर्स क्या होगा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की ओर, रेडी। चलो भाई तो नेक्स्ट हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, राइट, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो इस इक्वेशन की मुझे फिर से जरूर पड़ेगी तो इसको हम लोग संभाल के रखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इफ we stretch the spring, if we stretch the spring from xi मतलब initial position and again return to the xi position। ध्यान दीजिएगा भाई, राइट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस स्प्रिंग को एक्स आई से स्ट्रेच करके
फिर से उसको xi तक ले जा रहे हैं, राइट। तो वहां पे आप लोगों को फाइंड करना होगा भाई कि वर्क डन कितना होगा। तो चलो हमारे पास इक्वेशन रेडीमेड पड़ा हुआ है, इसका ही हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो मैं यही इक्वेशन फिर से लिखूंगा, आप लोग ध्यान रखना, हाफ kxi², ठीक है, माइनस हाफ kxf²। अब इस इक्वेशन का हमको कोई काम नहीं, रेडी। चलो भाई, अब आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने जो केस स्टडी किया हुआ है उस केस के लिए आप लोग देख सकते हो कि हमारा इनिशियल पोजीशन xi रहेगा और फाइनल पोजीशन भी क्या रहेगा, xi, राइट। xi से आप लोग स्ट्रेच करके फिर से स्प्रिंग को आप लोग xi पे ही छोड़ रहे हो, रेडी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, फॉर दिस केस, राइट, फॉर दिस केस you can see I can put xf is equal to xi, ठीक है। फाइनल पोजीशन भी मैं फिर से क्या रख रहा हूं भाई, वहीं पे मैं रिटर्न हो रहा हूं, मतलब xi पे। so the work done by spring force W is equal to half kxi² minus half। चलो भाई यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, इन द प्लेस ऑफ xf यू विल रिप्लेस xi²। चलो भाई ये तो आपको क्या मिल गया, देखो आप सेम इक्वेशन, हाफ ki² माइनस हाफ ki², आप लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, 0, राइट। तो यही स्टेटमेंट मैं दूसरी तरीके से क्या लिख सकता हूं भाई, द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन, अब ध्यान रखना भाई आप, इन साइक्लिक प्रोसेस, राइट, इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0। अब आप लोग चेक कर लेना, आप लोगों को याद ना हो तो, राइट। कंजर्वेटिव फोर्स की थर्ड डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, इन द क्लोज पार्ट वर्क डन इज 0, राइट। क्लोज पार्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, साइक्लिक प्रोसेस। सेम साइक्लिक प्रोसेस आप लोग केमिस्ट्री में भी अलग अलग तरीके से स्टडी करोगे कि भी हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे अगर हम लोग प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे, राइट, तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस मतलब आप लोगों को स्प्रिंग को ऐसे घुमाना नहीं है, राइट। यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होगा भाई कि आप लोग स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हो और वही पोजीशन पे वापस ले आ रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई, साइक्लिक प्रोसेस, राइट। तो वहां पे आपका वर्क डन आपको क्या मिला भाई, 0 मिला। तो इस पर डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, हम लोगों ने दो तरीके से प्रूव किया। फर्स्ट तरीका क्या था भाई कि अपना जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना हो रहा है, 0। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं भाई कि अपना जो स्प्रिंग फोर्स है, राइट, अपना जो स्प्रिंग फोर्स है भाई वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, राइट। मीन्स द दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ऑब्वियसली और ऑलवेज मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी भाई, ऑलवेज और ऑलवेज कंजर्व ही रहेगी, राइट। मतलब कि उसका कोई क्या होगा भाई, उसका कुछ लॉस नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहेगी। कंजर्व मतलब ऑलवेज बचना, उसका लॉस नहीं होना, राइट। फिर क्या होगा, एक में से दूसरे में क्या होगा, उसका कंजर्वेशन हो जाएगा, राइट। चलो भाई, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, राइट। आपको पूछेंगे प्रूव दैट स्प्रिंग फोर्स इन द स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप लोगों को कितना समझाना होगा ये फिगर ड्रॉ करके, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की ओर, राइट। चलो भाई, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, यू ऑलरेडी नो फ्रॉम S is equal to 0, x is equal to xm at each and every point the mechanical energy, right, the mechanical energy will be always कांस्टेंट, राइट। सेम स्टेटमेंट हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हम लोगों ने लिखा था, राइट, कि वहां पे भी कहीं पे भी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कंडीशन क्या होगी भाई कि आपका जो फोर्स होगा
वो कंजर्वेटिव होना चाहिए, जो तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, राइट। चलो भाई, कहीं पे भी मैकेनिकल एनर्जी तो क्या होगी भाई, कॉन्स्टेंट ही रहेगी। अब हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। देखो केस नंबर 1 मतलब 8 x इज इक्वल टू एक्स एम। चलो एक कॉमन सेंस की बात है, जब मैं स्प्रिंग को देखो आप उसकी नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रेच करके मैक्सिमम तक उसको मैं पुल करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, तो इस पोजीशन पे आप लोग क्लियर देख सकते हो, राइट। ऐसे में स्ट्रेच करके यहाँ पे अभी मैं पकड़ के रखूंगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो आप लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, थियोरिटिकली भी समझ सकते हो, और मैथमेटिकली भी आप लोग देख सकोगे, राइट, कि उसकी पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगी भाई, मैक्सिमम। क्योंकि पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होगा, 1/2 kx², 1/2 kx², और वहां पे x क्या होगा, xm मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आप लोगों को पोटेंशियल क्या मिलेगी, मैक्सिमम। लेकिन अभी हम लोगों ने इस ब्लॉक को रिलीज नहीं किया है, छोड़ा नहीं है, रिलीज नहीं किया है, तो उसकी वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 0 होगी। तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, राइट। x इज इक्वल टू एक्स, यू नो वेलोसिटी विल बी 0। so you know total mechanical energy E is equal to k plus u, राइट। हम लोग एक एक स्टेप को लिख के बताएंगे, राइट। k प्लस यू, नो k मीन्स कितना होगा, हाफ m² प्लस u मीन्स कितना होगा भाई, हाफ kx²। लेकिन मैं k की x की जगह पे क्या लिखूंगा भाई, मैक्सिमम x है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे v की जगह पे देख लो आप 0 पुट करूंगा, तो मुझे काइनेटिक कितना मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। तो प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, अभी हम लोगों ने इस ब्लॉक को रिलीज ही नहीं किया है, छोड़ा ही नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। उसकी काइनेटिक भी क्या होगी भाई, 0। तो सिर्फ उसके पास क्या होगा भाई, मैक्सिमम। आप लोग देख सकते हो भाई, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कितना मिल जाएगा। चलो भाई, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम लोग बात करेंगे आगे केस नंबर 2 की, राइट। नाउ x इज इक्वल टू एक्स। चलो भाई, x इज इक्वल टू एक्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। x इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होगा, उसकी जर्नी के दौरान कहीं पे भी बीच में मतलब कहीं पे भी, राइट, यहां से स्टार्ट करके यहां से यहां तक के बीच में कहीं पे, क्योंकि xm पे तो क्या होगा वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, राइट। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब नॉर्मल पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन के बीच में, या तो नॉर्मल पोजीशन से यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, मैक्सिमम पोजीशन के बीच में कहीं पे भी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, राइट। मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम नाम बोल देंगे भाई डैश। हमको भी पता है और मैंने आपको लिख के भी दिया है भाई, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, कि फाइनली तो हम लोग वही बोलने वाले हैं कि भाई किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, लेकिन मैकेनिकल तो सेम ही रहेगा। तो फाइनली लास्ट में तो हम लोग वही बोलने वाले हैं कि भाई E इज इक्वल टू ई डैश, जो आप लोग ऊपर भी देख सकते हो, एट ईच एंड एवरी पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। तो लास्ट में तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर ही करेंगे। चलो भाई, बीच में कहीं पे भी तो क्या होगा, उसके पास पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा। सेम चीज आप लोग सोच सकते हो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। फ्रीली फॉलिंग बॉडी को अगर आप लोग मतलब कि बॉडी को आप लोग फ्रीली फॉल करोगे, तो जर्नी के दरमियान, जर्नी के दौरान बीच में कहीं पे भी तो क्या होगा भाई, उसके पास पोटेंशियल काइनेटिक दोनों रहेगा, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी भी होगी और पोजीशन भी होगी, रेडी। तो आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, हाफ m², देख लो आप, हाफ m² प्लस हाफ kx²। अब आप लोगों को यहाँ पे xm नहीं लिखना है, xm मतलब वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और x मतलब क्या होगा, कहीं पे भी बीच में, बीच रास्ते में, ऐसा भी बोल सकते हो, राइट। बस ये आप लोगों को मिल गए 2 इक्वेशन। चलो भाई 1 और 2, अब आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना होगा, एज पर लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यू नो किसी भी पॉइंट पे उसका मैकेनिकल तो क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। मतलब आई कैन राइट E इज इक्वल टू ई डैश, E इज इक्वल टू ई डैश। चलो भाई, E कितना होगा, हाफ kxm² इज इक्वल टू, सामने की ओर ई डैश कितना होगा भाई, हाफ m² प्लस हाफ kx², रेडी। चलो भाई, इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो अब आप खास ध्यान रखना भाई,
अब हम बात करेंगे दूसरे केस की, एट एक्स इज इक्वल टू 0। आप लोग देख सकते हो भाई, हम लोगों ने सभी केस को कवर कर लिया। देखो कैसे याद रखना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने बात की मैक्सिमम पॉइंट की, कि भाई मैक्सिमम पे कितना रहेगा। फिर हमने बात की एक्स इज इक्वल एक्स, मतलब बीच रास्ते में कितना रहेगा उसका मैकेनिकल। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं कि भाई उसकी इनिशियल, राइट, उसकी शुरुआत की पोजीशन पे उसका मैकेनिकल कितना होगा, या तो वहां पे क्या मिलेगा, राइट। इस पोजीशन पे अगर वही स्प्रिंग रिलीज होके बीच में आएगी, राइट, तब की बात है, राइट। एक्स इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू क्या होगा भाई, vm। अब यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ठीक से राइट क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ एक चीज। when release the spring from xm or you can say x whatever, right। चलो भाई खास ध्यान रखना आप लोग, क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, मतलब कि बीच की पोजीशन पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को क्या होगा भाई, उनको कंफ्यूजन होगा कि नॉर्मल पोजीशन पे तो स्प्रिंग ऐसे ही पड़ी हुई है, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो उसका वेलोसिटी तो 0 नहीं होगा भाई। तो खास ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक में वेरीफाई नहीं किया हुआ है भाई। मैंने मैक्सिमम कब लिखा है, व्हेन वी रिलीज द स्प्रिंग फ्रॉम एक्स, किसी भी पोजीशन से हम लोग उसको स्ट्रेच करके फिर छोड़ रहे हैं, तो मेरे भाई वो स्प्रिंग क्या होगी, बीच में तो आएगी ना, बीच में आएगी, फिर क्या होगी, वो फिर से लेफ्ट साइड की ओर कंप्रेस भी होगी, फिर से ऐसे खुल के बीच में आएगी, फिर से क्या होगी भाई, वो एक्सटेंड होगी या तो एक्सपांशन होगी, फिर से क्या होगी, बीच में आएगी, फिर से लेफ्ट साइड जाएगी, राइट। वो क्या करेगी भाई, वाइब्रेशंस करती रहेगी। तो हम उस पोजीशन की बात करें जब मैं स्प्रिंग को किसी भी एक्स पोजीशन से क्या करूंगा भाई, उसको रिलीज करूंगा। रिलीज करूंगा तो क्या होगा, उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल क्या होगी, काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी। बीच में जब वो पहुंचेगा भाई, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, राइट। इस पोजीशन की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे स्ट्रेच करके फिर रिलीज कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। चलो भाई यही लोग यहाँ से रिलीज करोगे तो क्या होगा, आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग उसको खींच के देखो, राइट, यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम। काइनेटिक कितना होगा, 0, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या स्ट्रेस नहीं होगा। और मैं जैसे रिलीज करूंगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आप ही सोचिए ना, उसकी पोटेंशियल क्या होगी, काइनेटिक में धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, और उसकी काइनेटिक बढ़ती जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे ही बीच में पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, मैक्सिमम। फिर क्या होगा भाई, ये स्प्रिंग धीरे धीरे अंदर की ओर दबती जाएगी ना भाई, मतलब वो कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी तो क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक थी वो फिर से कम होने लगेगी। क्यों भाई, तो उस काइनेटिक को क्या करना है, स्प्रिंग को दबाना होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, स्प्रिंग को दबाने में राइट कन्वर्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगी भाई, स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस होती जाएगी उसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होगी, और सेम मैक्सिमम पोजीशन पे क्या होगा, फिर से स्प्रिंग पूरे की पूरी कंप्रेस हो जाएगी, और वहां पे आप सब लोग 1 सेकंड या तो एक मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक 0। फिर से उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, फिर से हुआ वहां से क्या होगा भाई, रिलीज होगा। जैसे रिलीज होगा तो उतनी स्पीड से क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और फिर से क्या होगा, यहाँ से स्प्रिंग को खुलना होगा। देखो, तो स्प्रिंग को खुलने के लिए अपनी काइनेटिक क्या होगी भाई, पोटेंशियल में कन्वर्ट करनी होगी। जैसे जैसे स्प्रिंग खुलेगी भाई, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। सेम यहाँ पे क्या होगा भाई, वो मैक्सिमम पे फिर से 1 मोमेंट के लिए स्टेशनरी हो जाएगा, फिर से क्या होगा भाई, अंदर की ओर जाएगा। रेडी, तो मतलब समझ गए आप लोग, बीच पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। सेम एग्जांपल मैं आप लोगों को दूसरी तरफ से ले रहा हूँ, राइट, फिर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने किसी भी एक स्ट्रिंग के साथ राइट किसी भी एक बॉल को यहाँ पे टाई किया हुआ है, ठीक है, और वो नॉर्मल पोजीशन में होगा। नॉर्मल पोजीशन मतलब कितना होगा भाई, x इज इक्वल टू 0। अब मैं इस बॉल को यहाँ से उठा के राइट इस हाइट पे ले आ रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, यहाँ से बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट ज्यादा रहेगी, mgs। अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, अभी देख लो आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा, इसकी पोटेंशियल धीरे धीरे वेलोसिटी और काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बीच पोजीशन पे क्या होगी भाई, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर उसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होगी। क्यों भाई, क्योंकि उसको ऊपर की ओर जाना होगा। ऊपर की ओर जाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की ओर खींचेगा, और इसको क्या होगा भाई, ऊपर की ओर जाना है, तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक धीरे धीरे पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और जब अपना बॉल यहाँ पे पहुंचेगा फिर से, तो क्या होगा,
वन मोमेंट के लिए वो स्टेशनरी हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, काइनेटिक जीरो, उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर से वो बॉल होगा वो भाई वहां पे चिपका नहीं रहेगा, वो वापिस आएगा ना भाई, तो जैसे जैसे वो वापिस आएगा फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बीच में क्या होगी भाई, मैक्सिमम। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से फिर से उसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि उसको ऊपर की ओर जाना है, राइट। तो सेम स्प्रिंग के लिए भी यही अप्लाई होगा, बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम। तो इस कंडीशन को हम लोग इक्वेशन 3 में अप्लाई करते हैं, रेडी। चलो भाई इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 हाफ यहाँ पे क्या था भाई, स्क्वेयर, हाफ के एक्स एम स्क्वेयर इज इक्वल टू, चलो भाई यहाँ पे v क्या हो जाएगा, बीच पोजीशन पे। आप लोग कंडीशन देख सकते हो, x इज इक्वल 0 की बात हो रही है, राइट। क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगा हाफ के वी एम स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 पे, मतलब कि जब लोग रिलीज होके, राइट, रिलीज होके जब बीच में पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक क्या हो गई होगी भाई, मैक्सिमम। और अगर काइनेटिक मैक्सिमम होगी भाई तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी भाई, 0 होगी। यहाँ पे आप लोग x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगा, 0। मतलब कि पूरे की पूरी आपकी जो पोटेंशियल होगी वो काइनेटिक में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और काइनेटिक हो जाएगी मैक्सिमम, रेडी। चलो यहाँ से आप लोगों को एक मस्त रिजल्ट मिल जाएगा, रेडी। चलो अब इस इक्वेशन का हम लोगों को कोई काम नहीं, राइट। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही एक आईएमपी रिजल्ट मिलेगा। चलो आप लोग देख सकते हो, हाफ क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, सॉरी, हाफ एम स्क्वायर होगा ना। चलो हाफ कट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा के एक्स एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बी एम स्क्वेयर। चलो भाई एम को आप लोग लोगे डिनोमिनेटर के अंदर, आप लोगों को मिलेगा के बाय एम इंटू एक्स एम स्क्वेयर इज इक्वल टू वी एम स्क्वेयर। सो चलो भाई दोनों साइड हम लोग क्या लेंगे, रूट लेंगे। अगर आप लोग रूट लोगे आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे ओनली वी एम, ठीक है। वी एम इज इक्वल टू, आप लोग देख सकते हो, इन अंडर रूट क्या हो जाएगा, के बाई एम, और एक्स एम स्क्वेयर का रूट क्या हो जाएगा भाई, ओनली एक्स एम, राइट। तो ये आप लोगों को मिल गया भाई मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन, कि आप स्प्रिंग को मैक्सिमम पोजीशन से आप लोग क्या कर रहे हो भाई, स्ट्रेच करके, पुल करके उसको छोड़ रहे हो, राइट। तो आप लोगों को उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी मिलेगी, तो उसकी आप लोगों को मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे पुट करनी होगी, उसका के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट पुट करना होगा, और जो ब्लॉक आप लोग खींच रहे हो उसका मास आप लोगों को पुट करना होगा। तो उस ब्लॉक की आप लोगों को वीएम मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात आप लोग खास याद रखना, 5 मिनट बाद मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, ठीक है। 5 मिनट बाद मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा कि भाई बीच की पोजीशन पे आप लोग थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली आप लोग कहीं पे भी बोल सकते हो कि भाई एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब स्प्रिंग रिलीज होगी मैक्सिमम पे तो बीच की पोजीशन पे क्या होगा भाई, उसका काइनेटिक उसके पोटेंशियल के जितना हो जाएगा, मतलब कि पूरे का पूरा काइनेटिक पोटेंशियल जितना हो जाएगा, नहीं। तो ये याद रखना, मैं आप लोगों को 5 मिनट बाद याद करवाऊंगा, ठीक है। चलो जहां पे हम लोग थे वहां पे फिर से बात कर रहे हैं। चलो भाई इसके अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, चैप्टर नंबर 2 डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ, रेडी। चलो भाई वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, L1 T1, यू नो L1 बाय T1 मतलब कि लेंथ बाय टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। चलो भाई अंडर रूट के बाय एम हम लोग एज इट इज रखेंगे, राइट। और सेम हम लोग डीएफ के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, चलो भाई सॉरी एक्सएम के, एक्स मतलब क्या होगा भाई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन लेंथ, कितना होगा L1, रेडी। चलो आप लोग देख सकते हो भाई L1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आप लोगों को अंडर रूट के बाई एम का अगर एमएलटी पूछा जाए, मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, L1 कट हो जाएगा। आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, 1/T1 मिलेगा। आप लोग देख लीजिए L1 कट 1/T1। अब आप कुछ याद कीजिए, अगर आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा जिनिस सीखना हो तो आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हो, कि आप लोग बोल सकते हो ये सेम फॉर्मूला
फ्रीक्वेंसी के जितना होगा, ये मैं जिट की बात कर रहा हूँ, राइट। आप लोगों को पूछ सकते हैं लोग कि भाई अंडर रूट k/m का एमएलटी क्या होगा, तो आप लोगों का आंसर होगा 1/21। आप लोगों को ये लोग पूछ सकते हैं कि अंडर रूट k/m का एमएलटी डायमेंशनल फॉर्मूला या तो उसका यूनिट कौन सी क्वांटिटी की बराबर होगा, तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा भाई फ्रीक्वेंसी, बिकॉज आप लोग 10th या 9th में स्टडी कर चुके हो, 11th में भी एमएलटी में शायद आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई 1/t, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का बेसिक इक्वेशन क्या होगा 1/टाइम। आप लोग, मैंने क्या बोला भाई, अंडर रूट k/m इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, अंडर रूट k/m और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका यूनिट सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब चैप्टर 2 में आपने सीखा होगा भाई। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूं तो ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब कि एमएलटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, वो दोनों सेम नहीं है, रेडी। तो चलो ये भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। अब हम जहाँ पे थे वहां की बात करें, चलो भाई यहाँ पे रूट की बात हो रही है। अगर मैं ये रूट निकालना चाहूँ तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे भाई, स्क्वायर लेंगे, राइट। अगर आप लोग स्क्वायर लोगे तो आपको मिलेगा k/m, ठीक है। k/m ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, उसका एमएलटी की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पे आप लोग स्क्वायर लोगे तो आप लोगों को मिलेगा 1/t², और 1/t² मतलब क्या होगा, राइट, t-2। तो यहाँ पे मैं और एक आपको एडवाइस दे दूं जीएच के लिए, राइट, जो डायरेक्ट एमएलटी वाले चैप्टर के साथ क्या करेगा भाई, रिलेट करेगा कि 1/t2 भी कोई ना कोई क्वांटिटी का फॉर्मूला हो सकता है, राइट। तो वहां पे आप लोगों को उस क्वांटिटी को भी फाइंड करके इसके साथ कंपेयर करना होगा। तो वो भी पूछ सकते हैं कि 1 k/m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 1/t2 या तो t-2, रेडी। चलो भाई, अब हम लोगों ने एक रिजल्ट फाइंड कर लिया मैक्सिमम वेलोसिटी का, रेडी, इक्वेशन की मदद से, राइट। और एग्जाम के अंदर या तो मुझे पूछा जाए कि इक्वेशन बोलो, तो मैं भी याद नहीं रखता। मैं क्या करूंगा भाई, इस कंडीशन को याद रखूंगा। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम पोजीशन पे जो उसकी पोटेंशियल होगी वो x = 0 पे पूरे की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को यही याद रखना होगा, ½ k² = ½ m²। बस फिर जिस क्वांटिटी को आप लोग फाइंड करना चाहते हैं उसको आप लोग सब्जेक्ट बना लीजिए। ये इक्वेशन याद रखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये चीज को आप लोगों को याद रखना होगा, प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली या तो मैथमेटिकली, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे स्मार्ट चार्ट, बहुत ही मजा आएगा, और उसका हम लोग मोस्ट टाइम की ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो वो क्वेश्चन आप लोगों को अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी के लिए आप लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिए स्प्रिंग के लिए। तो याद हो तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो स्मार्ट चार्ट ड्रॉ किया था, उसी तरीके से, राइट, मस्त तरीके से हम लोग स्प्रिंग के लिए स्मार्ट चार्ट ड्रॉ करेंगे, राइट। उसकी पोजीशन, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का सम मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी, ये सब चीज को हम लोग कवर करेंगे, रेडी। चलो भाई, अब हम स्मार्ट चार्ट की बात करें, आप लोगों को अभी जो मैं फिगर ड्रॉ की थी उसको भी प्रैक्टिकली समझते इस चार्ट को ड्रॉ करना होगा, राइट। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसकी पोजीशन की कि आप लोग किस पोजीशन से स्प्रिंग को रिलीज कर रहे हो, राइट। और आपके पास अगर पोजीशन होगी तो भी इस बात है, आपको ऑटोमेटिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी ½ kF², रेडी। एक्स को आप लोग पुट करोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की, राइट। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा अपना इमेजिनेशन पावरफुल करना होगा, राइट। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बोलता जाऊंगा, रेडी। वेलोसिटी, अगर आपके पास वेलोसिटी होगी तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को उसकी काइनेटिक एनर्जी मीन्स ½ मिल जाएगी, और आपके पास पोटेंशियल और काइनेटिक होगी तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, रेडी, E = K+U। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, रेडी। आप लोग बस ध्यान रखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। चलो भाई, हम बात करते हैं पोजीशन x = +xm की, मतलब कि भाई मैंने स्प्रिंग को नॉर्मल पोजीशन से पूरे का पूरा स्ट्रेच करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप लोग ही देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, उसके पास पूरे का पूरा पोटेंशियल होगा और उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो उसकी काइनेटिक कितनी होगी, 0 होगी, देख लो आप, राइट। एक्सएम को आप लोगों को देख देख के पुट करना होगा, क्या होगा, ½ kxm², रेडी। वहां पे
उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। प्रैक्टिकली भी आप लोग सोच सकते हो और कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि अभी मैंने इसको रिलीज ही नहीं किया हुआ है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो होगी मतलब उसके पास काइनेटिक जीरो होगी। क्यों भाई, क्योंकि अभी वो वेलोसिटी नहीं क्या करेगी भाई, ले पाएगी, तो उसके पास काइनेटिक क्या होगी, जीरो होगी। तो उसकी मैकेनिकल कितनी होगी, हाफ kx m² प्लस जीरो हम हर बार लिखेंगे आपका ध्यान खींचने के लिए, ये इन दोनों का मैंने सम किया हुआ है, रेडी। तो अभी उसके पास मैकेनिकल कितनी होगी भाई, पूरे की पूरी पोटेंशियल जितनी, ठीक है। अब हम बात करेंगे x इज इक्वल टू जीरो की। तो मेरे भाई x इज इक्वल टू जीरो की हम बात करते हैं तो आप लोगों को क्या सोचना होगा भाई, जब हम लोगों ने स्प्रिंग को ऐसे ही रखा हुआ था वो पोजीशन नहीं, अब जब स्प्रिंग रिलीज होके बीच में आएगी तब क्या हुआ। तो मैंने आप लोगों को अभी 10 मिनट पहले पूरे का पूरा सिखाया था, 2 एग्जांपल देके, बॉल के लिए और स्प्रिंग के लिए। वही बात हो रही है कि जब बीच में स्प्रिंग पहुंचेगी तब क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू जीरो आप लोग यहाँ पे पुट कीजिए। चलो भाई देख लो आप, उसकी पूरे की पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी में, मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, मैक्सिमम। इसलिए उसकी काइनेटिक क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया था, रेडी। आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, हाफ m²। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बोला था 5 मिनट बाद मैं आपको याद करवाऊंगा, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा था कि भाई हाफ mv m², मतलब कि x इज इक्वल टू जीरो पे कितना होगा, कितना होगा भाई, पूरे का पूरा हाफ kx m² जितना होगा, राइट। हम लोगों ने अभी 5-10 मिनट पहले प्रूफ किया था, मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया था, आप लोग देख लेना, राइट। इसका जादू क्या होगा मैं अभी आप लोगों को 5 मिनट में बता रहा हूँ। लास्ट हम बात करें कि भाई कॉमन सेंस की बात है, जितनी स्प्रिंग हम लोग स्ट्रेच करेंगे उतनी वो क्या होगी, सामने की ओर दब जाएगी, मतलब कि कंप्रेस हो गई। जितना बॉल को आप यहाँ पे हाइट पे उठाओगे उतना ही वो बॉल क्या आ जाएगा, सेम हाइट पे सामने की ओर जाएगा, यदि तो माइनस एक्शन की हम लोग बात करें तो क्या होगा भाई, आप लोग यहाँ पे माइनस पुट करोगे तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अगेन हाफ kx m², देख लो आप, राइट, यहाँ पे पुट करना है। अगेन जब स्प्रिंग पूरे की पूरी दब जाएगी तो उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, जीरो, राइट। तो उसकी काइनेटिक भी क्या हो जाएगी भाई, जीरो। अगेन इन दोनों का सम करना, आप लोगों को मिलेगा हाफ kx m² प्लस जीरो। अब आप लोग जादू देखिए, हम लोगों ने जो चार्ट बनाया उसका आप लोग देखो, तीनों में आप लोगों को सेम इक्वेशन मिला, तो तीसरी बार प्रूफ हो गया भाई। उसका मैकेनिकल किसी भी पॉइंट पे आप लोग देख लो, किसी भी पॉइंट पे उसका मैकेनिकल क्या रहेगा भाई, ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। पोटेंशियल चेंज होगा, काइनेटिक चेंज होगा, लेकिन वो इक्वेशन तो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, रेडी। अब हम लास्ट बात करते हैं इसके ग्राफ की, खास ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, रेडी। और यहां से ही हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है भाई। तो आप लोग थियोरेटिकली, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप लोग मैथमेटिकली इस ग्राफ को आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, राइट। मैं सभी तरीके से आप लोगों को फिर से रिपीट करके बताऊंगा, राइट। आप लोगों को कोई भी एक चीज समझ में आ जाए तो भी आप लोग ग्राफ को समझ सकते हो। चलो भाई, यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं उसकी एनर्जी और उसके डिस्टेंस का, जो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, राइट। उसकी एनर्जी और पोजीशन का पूरे का पूरा चार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। चलो भाई, सपोज इस पोजीशन पे इसकी एनर्जी क्या रहेगी, सपोज मैक्सिमम रहेगी, और यहाँ पे क्या होगी भाई, जीरो। चलो अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप लोगों को यहाँ पे ही फोकस करना होगा और कुछ नहीं देखना, रेडी। और उससे पहले हम लोग पोजीशन की बात कर लें। चलो भाई, यहाँ पे क्या होगा देखो आप, x इज इक्वल टू जीरो, राइट। सभी पॉइंट कवर कर लेंगे, पूरे का पूरा चार्ट। x इज इक्वल टू जीरो आ गया, x इज इक्वल टू xm आ गया भाई, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस xm आ गया, रेडी। चलो बस आप लोगों को इस चार्ट में से सभी पॉइंट को निकालना होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। चलो भाई, xm पे, चलो xm को फाइंड कीजिए आप लोग शांति से। xm यहाँ पे उसकी पोटेंशियल कितनी रहेगी, हाफ kx m², रेडी। काइनेटिक कितनी रहेगी, जीरो, मतलब उसकी पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एनर्जी मैक्सिमम। चलो भाई, यहाँ पे आप लोगों को xm पे मैक्सिमम पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। xm पे मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमें मिल जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू जीरो पे उसका पोटेंशियल कितना रहेगा, राइट। सॉरी, हम पोटेंशियल की बात करें, राइट। x इज इक्वल टू जीरो पे उसका पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो। चलो भाई, जीरो पे जीरो रहेगा,
0 पे 0, यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, 0 पे क्या नोट करूंगा 0। थर्ड पॉइंट की बात, x इज इक्वल टू माइनस एक्स एम, चलो फाइंड कीजिए x इज इक्वल टू माइनस एक्स एम। वहां पे उसका पोटेंशियल अगेन कितना होगा, हाफ के एम स्क्वायर। हाफ के एम स्क्वायर मतलब मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम, और इस पॉइंट पर आप लोग ऐसे क्रॉस कीजिए, राइट। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होगा होता है वो आप लोग पहले भी सीख के आए हो, राइट। चलो भाई आप लोगों को 3 पॉइंट मिल गए, 1 2 3, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। अब आपको क्वेश्चन होगा, अभी हम लोगों ने ये जो ग्राफ है वो कर्व की ड्रॉ किया है, तो उसका भी आंसर है कर्व ग्राफ की ड्रॉ किया है, तो मैथमेटिकली यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, राइट। स्क्वायर वाली कोई भी क्वांटिटी का ग्राफ ऑलवेज कर्व होगा, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मैंने बताया था उसका ग्राफ क्या आएगा भाई, स्ट्रेट आएगा, वहां पे कर्व नहीं आएगा। यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से ग्राफ क्या रहेगा भाई, कर्व। आप लोग प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन के आप लोग स्ट्रेच करके रखोगे तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर देता हूँ। चलो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी पोटेंशियल की, राइट, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर मैं जब रिलीज करूंगा तो आप लोग देख सकते हो उसकी पोटेंशियल धीरे 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 क्या होगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बीच की पोजीशन पे क्या हो जाएगी, 0 पोटेंशियल। फिर से क्या होगी भाई, स्प्रिंग अंदर की ओर दबेगी तो उसकी पोटेंशियल फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, और सामने की ओर से मैक्सिमम पोजीशन पे क्या होगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं काइनेटिक की। चलो भाई काइनेटिक के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। चलो देखो, x इज इक्वल टू एक्स एम, फाइंड कीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स एम। काइनेटिक कितनी है भाई, 0 है, काइनेटिक कितनी है, 0। यहाँ पे आप लोग नोट करोगे 0, राइट। अब x इज इक्वल 0, चलो फाइंड कीजिए आप x इज इक्वल 0। यहाँ पे काइनेटिक कितनी होगी भाई, मैक्सिमम हाफ mvm स्क्वायर। मैक्सिमम मतलब कितना होगा, देख लो आप, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा x इज इक्वल टू 0 पे। फाइनली x इज इक्वल टू माइनस एक्स एम, यहाँ पे फाइंड कीजिए आप लोग, उसकी काइनेटिक कितनी होगी, काइनेटिक की बात हो रही है, 0। यहाँ पे उसकी काइनेटिक कितनी होगी भाई, 0। आप लोगों के पास 3 पॉइंट आ गए, 1 2 3 काइनेटिक के लिए, उसको आप लोग कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो काइनेटिक की हो रही है। तो प्रैक्टिकली भी आप लोग सोच सकते हो भाई कि मैंने जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करके ऐसे ही रखा था तो उस पोजीशन पे उसकी काइनेटिक क्या थी भाई, 0 थी। जैसे ही मैंने स्प्रिंग को रिलीज किया, उसको छोड़ा, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक क्या हो गई भाई, बढ़ती गई, राइट। बीच की पोजीशन पे क्या हो गई भाई, मैक्सिमम। फिर स्प्रिंग दबती जाएगी, इसलिए उसकी काइनेटिक क्या होगी भाई, डिक्रीज होती जाएगी, और सामने की ओर फिर से क्या हो जाएगी भाई, 0। अब हम लास्ट बार करते हैं भाई मैकेनिकल की, अब मजा आएगा भाई। मैकेनिकल आप लोग देखिए, हर एक पोजीशन पे x इज इक्वल टू एक्स एम कितनी होगी, हाफ के एफ एम के, मतलब कि मैक्सिमम, यही पॉइंट आएगा। x इज इक्वल टू 0 मतलब कि यहाँ पे कितनी होगी, मैक्सिमम, यही पॉइंट आएगा। x इज इक्वल टू माइनस एक्स एम, फिर से कितनी होगी, मैक्सिमम, यही पॉइंट आएगा। उसको आप लोग अगर कनेक्ट करोगे, आप लोग क्लियरली देख सकते हो, ये आप लोगों को क्या मिल गया भाई, E। और आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि E आपको कितना मिल रहा है, कांस्टेंट। देखो फिर से प्रूफ हो गया कि उसकी काइनेटिक क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये सभी चीजें एक बार रिवाइज करके फिर हम मैकेनिकल मतलब स्प्रिंग के लिए और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए बहुत ही मोस्ट टाइम की कंसेप्ट डिराइव करने वाले हैं, जो आप लोगों को जीनीट के अंदर सबसे ज्यादा काम आएगा, रेडी। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.